So today uh, we will be discussing about Fraunhofer diffraction. I told you yesterday that there are two different class of diffraction. One is Fresnel class, the other is Fraunhofer class. And I hope you also remember that in Fraunhofer class of diffraction, the effective distances between the source aperture and the screen are infinity. Okay. So what I'm doing is I'm going to explain Fraunhofer diffraction today. Fraunhofer diffraction. Due to a single slit, a single slit or aperture, right? This is what I'm going to explain it today. First of all, consider an aperture or a slit. Okay, so this is our slit, let's say. Let me call this slit or this small opening as AB. Fine. Take a source. Let me call that as S. Because I cannot put any source at infinity. So what I'll do, I'll use a biconvex lens. I'll use a biconvex lens such that the light is incident parallelly on this slit like this from this source. It means it means where I have put this source Focus. at the focus of this particular lens. Fine. And to effectively make the distance of this screen infinite from this aperture, I will also put another lens right over there. Fine. This is lens L1. This is lens L2. Now, according to Newton's rectilinear motion, it is said that the light will go straight, like this, light will go straight like this. And because if the light is coming parallel to lens L2, तो ये कहाँ focus होगी? इस lens L2 के focus पे. So let me call this point as C. Because if this light is coming parallelly, it would focus at the center, and this is the focus of this particular lens L2. Then ये तब होगा जब हम ये माने कि light always follow rectilinear motion. But we also know from our discussion yesterday and the day before that light can also deviate if the aperture is very small. From its rectilinear path, the light can deviate. तो एक दूसरा तरीका क्या है? हो सकता है कि लाइट इस तरीके से जाए, डेविएट हो जाए, और है तो अभी भी ये पैरेलल ही, लेकिन वो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है या हम जो कहें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके पैरेलल नहीं है, बट दिस बीम इज स्टिल पैरेलल. तो अब ये कहीं और फोकल प्लेन पे, एक ऐसा प्लेन जिसने फोकल पॉइंट को रखा हुआ है उसे हम फोकल प्लेन बोलते हैं, फोकल प्लेन पे तो होगी लेकिन सेंटर पे नहीं होगी. लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट पी. दिस इज स्टिल पैरेलल. ओके, दिस इज स्टिल पैरेलल. ये जो ग्रीन वाली लाइन बनाई है वो पैरेलल है. तो कन्वर्ज तो होगी ही, और फोकल प्लेन पे कन्वर्ज होगी, यानी एक ऐसा प्लेन जिसने फोकस पॉइंट सी को अपने में समाहित किया हुआ है. फाइन. एंड दिस वाज आवर स्लिट. ए बी वाज आवर स्लिट. दिस वाज द स्लिट. फाइन. अब आपको ये देखना है कि जो पी है वो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ब्राइट लाइट की होगी, डार्क लाइट होगी, क्या होगा पी में. क्या आप मुझे बता सकते हैं पी और सी के बीच में जो लाइट आ रही है, यानी एक लाइट है आपकी, यू कैन कंसीडर दैट ए पी बी पी, और एक है ए सी बी सी. इन दोनों के बीच में इफ आई वांट टू फाइंड आउट अ फेज डिफरेंस, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस. Fine. And let me call this as
बी एन, ये परपेंडिकुलर हो गया बी एन। और ये जो एंगल है इसे मैं मानता हूं लेट्स से इट इज थीटा, तो एक एंगल थीटा दूरी पर यहां से ये एंगल भी कितना हो जाएगा फिर थीटा, यू कैन ट्राई दैट, ये 90 हो जाएगा, ये 90, तो ये थीटा एंगल हो जाएगा। अब यहां से इस पर्टिकुलर ट्राइंगल ए बी एन के लिए आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी साइन थीटा? अनम्यूट होके बताइए कोई, व्हाट विल बी साइन थीटा? साइन इज परपेंडिकुलर, सर बी एन अपॉन ए एन। BN upon AB. बी एन अपॉन ए बी, एग्जैक्टली इट वुड बी बी एन अपॉन ए बी। सो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एक्चुअली जो बी एन है, जो कि इस जगह देखें तो एपी और बीपी वाली लाइन में पाथ डिफरेंस है, ओके, path difference है, तो I can say that Bn, which is the path difference, is equals to AB sin theta. So Bn, which is the path difference, is equals to AB sin theta. अब अगर ये दिया है आपको कि भाई जो स्लिट थी, उस स्लिट की जो चौड़ाई थी या विड्थ थी स्लिट की, या इस अपर्चर की जो विड्थ थी वो E थी, तो Bn क्या हो जाएगा? Bn कैन बी रिटन दैट AB की जगह E लिख दीजिए, E sin theta। सही। एंड व्हाट दिस इज, ये Bn क्या निकाला है हमने? दिस इज एक्चुअली आवर पाथ डिफरेंस। This is our path difference. पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो फैक्टर कौन सा है? पाथ डिफरेंस को, दिस इज माय पाथ डिफरेंस एंड नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फेज डिफरेंस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय लैम्डा। ओके, तो इट इज इक्वल्स टू एक्चुअली 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और यहां बताएं तो फिर हमारा फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? व्हाट वुड बी द फेज डिफरेंस इन दिस केस? फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 pi by lambda, then tell me, E sin theta. This is the phase difference. Okay. ये आपको फाइनल फेज डिफरेंस मिला, ओके, एपी और अगर बीपी में देखें तो इस फेज डिफरेंस की वजह से मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस आ सकती हैं, लेकिन आपको एक थियरी दिमाग में रखनी होगी जिसे कहते हैं हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स थ्योरी, एक तो आपने हाइगन्स थ्योरी रिफ्रैक्शन की पढ़ी होगी या डबल रिफ्रैक्शन की पढ़ी होगी अगर पोलराइजेशन के वीडियोस देखें। एक हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट भी है। हाइगन्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जैसे ही एक लाइट इस स्लिट के थ्रू पास होगी, गौर से सुनिएगा, जैसे ही एक लाइट इस स्लिट के थ्रू पास होगी तो स्लिट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से काम करेगा। इस स्लिट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह से काम करेगा। इस स्लिट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह से काम करेगा और हर एक एडजेसेंट, गौर से सुनिएगा, हर एक एडजेसेंट में एक फिक्स्ड फेस डिफरेंस होगा। तो हमने देख लिया कि जो लाइट बी पर है, जो लाइट ए पर है, उन दोनों में, या जो लाइट यहां से जनरेट हुई या बी से जनरेट हुई, उन दोनों में टोटल फेस डिफरेंस है 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा का। ठीक, और मैं मान रहा हूं दैट द नेट डिफरेंस इज लेट्स से इक्वल्स टू एन डेल्टा। तो ये जो टोटल फेस डिफरेंस है वो हमने कहा कि ये भाई एन डेल्टा अलग अलग फेस डिफरेंस की वजह से आया है। तो मैं लिख सकता हूं एन डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा। यानी एन डिफरेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं जिनका की फेजर इक्विवेलेंट आपने लिखा है। तो आप बता सकते हैं यहां से डेल्टा क्या होगा? डेल्टा विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स। अगर आपने मान लीजिए इसको एन डिफरेंट पॉइंट्स में कंसीडर कर लिया तो टू सक्सेसिव पॉइंट्स में ये क्या होगा बताइए? डेल्टा विल बी, जल्दी बताओ, 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा अपॉन एन। 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा अपॉन एन, राइट? दिस विल बी आवर डेल्टा। अब हमें चाहिए साहब एम्पलीट्यूड, ये तो केवल फेज है, हमें चाहिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो मुझे चाहिए
इस फेज डिफरेंस की वजह से जो टोटल एम्पलीट्यूड आएगा। तो आपको ध्यान है हमने आर के लिए एक इक्वेशन निकाली थी कोई पिछली क्लास में, कुछ याद है आपको? वी डिड सम कैलकुलेशंस, वी फाउंड सम इक्वेशंस, ऐसा कुछ किया था अगर याद हो तो ये रही आपकी इक्वेशन। ओके, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। तो इस वक्त आप याद रखें कि हमारे पास जो डेल्टा है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। ओके, तो अगर मुझे रिजल्टेंट पता करना है कि उन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो सेकेंडरी सोर्स हाइगन्स की थ्योरी से बनी, उनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, तो इट वुड बी आर साइन एन डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा बाय 2। ओके, आर साइन एन डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा बाय 2। अभी हमारे केस में डेल्टा क्या निकाला है हमने अभी फिलहाल, इट वुड बी ए साइन एन बाय 2। अब डेल्टा क्या निकाला है जल्दी से बताइए, व्हाट वाज इट? 2 पाई पागल। लैम्डा इंटू एन ई साइन थीटा, करेक्ट, डिवाइडेड बाय साइन 1/2 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एन ई साइन थीटा, दिस इज इट। अब क्या करना है आपको, ये n से n कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास बचा r इज इक्वल्स टू a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट स्मॉल पर्टिकुलर जो सिंगल सेकेंडरी वेव बनेगी या सेकंड सिंगल सेकेंडरी सोर्स होगी उसका एम्पलीट्यूड, साइन पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई लैम्डा एन ई साइन थीटा। ओके, अब मान लेते हैं, चलो पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा को कोई अल्फा मान लो, तो ये जो पोर्शन है ना इसे कोई अल्फा मान लो, तो हमारे पास बचा इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाई एन, करेक्ट है। अब आपको ये बताया था कि अगर n बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अल्फा बाई एन बहुत कम हो जाएगा, तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते थे, r इज इक्वल्स टू ए एन साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये यहां से कैसे आया पता है, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग दैट साइन अल्फा बाई एन कैन बी रिटन एज नियरली अल्फा बाई एन, बिकॉज n इज वेरी लार्ज, तो अल्फा बाई एन बहुत स्मॉल हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो ये तो हो गया। अब आपके पास एक छोटी सी चीज बची कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है इट इज समथिंग लाइक ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अगर एम्पलीट्यूड आर है तो इंटेंसिटी क्या होती है एम्पलीट्यूड का? व्हाट इज इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, जल्दी बताओ। स्क्वायर। हाँ, तो आर स्क्वायर निकाल लो तो आपको आई पता चल जाएगा। तो टेक आई विच इज नथिंग बट, अरे फ्रेम से कट रहा है, विच इज नथिंग बट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, फाइन, दिस इज इट। अब यहां से इट कम्स एज, तो ये आपकी इंटेंसिटी की इक्वेशन हो गई, ठीक है। और आपने देखा कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, और इसके साथ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिस विच इज साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ओके, साइन अल्फा अपॉन अल्फा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये हमें देखना होगा कि कैसे ये पर्टिकुलर, देखो ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा ए स्क्वायर, या आप ये मान ले कि यहाँ ए तो रहेगा ही रहेगा विच इज कांस्टेंट। अब ये साइन अल्फा अपॉन अल्फा डिफाइन करेगा या डिसाइड करेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे मिनिमा, ठीक है। तो अब हमें यही करना है कि भाई इंटेंसिटी तो पता चल गई क्या होगी, बट यू हैव टू कम बैक एंड एनालाइज द फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज बहुत रिगरस मैथमेटिक्स है, आप प्लीज पेन पेपर लेकर ही बैठिएगा, अदरवाइज आपको समझ आ भी जाएगा तो आप 2 मिनट में भूल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज जाइए और पेन पेपर लेकर आइए। नाउ वी विल कम बैक टू आवर एनालिसिस ऑन फाइंडिंग मैक्सिमास एंड मिनिमास। तो देखिए रिजल्टेंट क्या है, इक्वेशन रिजल्टेंट की आपने अभी बताई, इट इज नथिंग बट ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, राइट।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन अल्फा। और टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ लिया है आपने, अभी नहीं पढ़ा है? आई होप आपने टेलर सीरीज पढ़ एक्सपेंशन पढ़ लिया है। तो जो आप पढ़ लिया। आप बता सकते हो साइन अल्फा का टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है? इट इज अल्फा माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा की अल्फा पावर फाइव अल्फा की पावर फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 पॉइंट फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अल्फा की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल माइनस 7 प्लस अपॉन फैक्टोरियल इट्स सो समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव। अब क्या करो, अगर मैं यहां से एक अल्फा कॉमन ले लूं इन सारे टर्म्स में से, तो आई विल बी लेफ्ट विथ a अल्फा अपॉन अल्फा। इट वुड बी 1 माइनस, गौर से देखिएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल minus alpha की power 6 upon 7 factorial and so on. It would go like this. Fine. Now, what we have is ये alpha से गया alpha कट, तो मेरे पास ये बचा केवल it's like a 1 minus alpha square upon 3 factorial plus alpha की power 4 upon 5 factorial and so on. Okay. R जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा अगर ये वाले नेगेटिव वाले टर्म्स हट जाएं। सही बात है भाई, ये आपके पास एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है और आपने आर को इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड निकाल लिया है। देयर आर मेनी टर्म्स व्हिच आर पॉजिटिव, देयर आर मेनी टर्म्स व्हिच आर नेगेटिव। तो आर मैक्सिमम कब होगा? जब ये नेगेटिव वाले टर्म्स हट जाएं। करेक्ट? तो आर विल बी मैक्सिमम इफ द नेगेटिव टर्म्स इन द अबव इक्वेशन वैनिशेस। और नेगेटिव टर्म कब वैनिश होंगे बताएं, नेगेटिव टर्म कब हटेंगे? Tell me, when will the negative term will vanish? पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन तो पॉजिटिव वैल्यूज, नहीं 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 अल्फा के टर्म्स में बताइए, अल्फा को क्या होना पड़ेगा अगर मैं नेगेटिव टर्म्स को हटाना चाहता हूं? तो अल्फा को जीरो कर देंगे तो 1 तो बचेगा यहाँ पे और बाकी सब मर जाएंगे। ओके, 0 तो आई विल बी गेटिंग r इक्वल्स टू a देन। ओके, तो r इक्वल्स टू a, दैट विल गिव मी माय मैक्सिमा। तो अगर अल्फा जीरो हो जाए, देखिए, इफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, I will be getting r which is having the maximum of the maximum value. I will be having maximum value. If r equals to a, I will be having maximum value. Huh? Because then r will become equals to a, क्योंकि अल्फा जीरो हो गया है। ठीक है, अब अल्फा जीरो होने का मतलब क्या है? अब यहां से देख के बताएं मुझे, अल्फा क्या था? अल्फा वाज इस टर्म में, यहाँ अभी जो इक्वेशन निकाली थी हमने उसके टर्म्स में, इट वाज पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा। अब देखो, ना तो ई जीरो हो रहा है, ना पाई जीरो हो रहा है, ना लैम्डा जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या जीरो हुआ होगा? थीटा। तो अगर आप थीटा को जीरो कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग मैक्सिमम, विच आई विल कॉल एज प्रिंसिपल मैक्सिमम नाउ। आई विल कॉल इट एज प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो जो सी पर हमें दिखा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल मैक्सिमम, और उसकी इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? ए स्क्वायर के। ओके, आर स्क्वायर के बराबर होगी द इंटेंसिटी, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज प्रिंसिपल मैक्सिमम। और उसके लिए जो थीटा है वो कितना है? 0 डिग्रीज। 0 डिग्रीज है, एग्जैक्टली। अब आती है कि इसके अलावा जब आप इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ या इस तरफ चलेंगे तो देयर विल बी ऑल्टरनेट वेरिएशन इन द इंटेंसिटी, विच इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ऑल्टरनेट वेरिएशन का मतलब है अब मुझे पता करनी पड़ेंगी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस भी। ठीक है, हालांकि आपको केवल फॉर्मूलाज याद करने हैं, you just have to remember the formulas, but we will utilize our time in order to building up the understanding of वो formula कहां से आए। साइन आपने देखा कि अल्फा इक्वल्स टू जीरो पे मिनिमम होगा। ओके, अल्फा इक्वल्स टू जीरो पे हमने देखा यहाँ पे कि अगर मेरा जो साइन अल्फा है वो जीरो हो जाए, अगर साइन अल्फा है वो जीरो हो जाए, तो उसकी आपने कंडीशन निकाली कि साहब आप अल्फा को जीरो कर दीजिए। लेकिन अल्फा को जीरो करने से हमारे पास गड़बड़ क्या आएगी? प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है। एक कंडीशन ऐसी भी होगी, आप इसे लिख लीजिए, आई एम नाउ डिराइविंग इट फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमा। एक कंडीशन ऐसी भी होगी कि साइन अल्फा तो जीरो हो लेकिन अल्फा अपने आप में जीरो ना हो।
ऐसा हो सकता है साइन के लिए। कब होता है? when angle is not 0 equals to 0 but sin alpha is 0। तो ऐसा तब होता है जब अल्फा किसके बराबर हो? पाई के मल्टीपल्स के बराबर। तो यू कैन टेक इट एज 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। अगर अल्फा इसके बराबर हो गया, यहां से देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैविंग मैक्सिमा नाउ, आई एम जस्ट सेइंग कि ये मिनिमम भी तो हो जाएगा साइन अल्फा खुद जीरो हो जाए। और साइन अल्फा कब जीरो हो रहा है? मैंने देखा इट इज गोइंग टू बी जीरो, अल्फा नहीं जीरो हो, क्योंकि अल्फा जीरो का मतलब तो प्रिंसिपल मैक्सिमा है। तो एम से आ जाए, शुरू हो जाए। और एम कहां से शुरू होगा इसमें? 0 से 1 से। 1 वन से। से 1 2 वन 3 से डॉट 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 वन इस से तरीके से 1 से शुरू होगा। अगर 0 हो गया तो यू विल गेट अ प्रिंसिपल मैक्सिमा एनीवेज। फाइन। तो अब बस ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए दैट अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई। अब अल्फा क्या था? पाई बाय लैम्डा ई sin theta, which I am saying is equals to plus minus m pi. Pi से pi cancel. We got the condition for minima is that e sin theta has to be equals to plus minus m of lambda, where m starts from 1, 2, 3 and so on. E sin theta is equals to plus minus m lambda. And this will give you first, second, third minima. बीच में एक मैक्सिमा है, फिर उसके बाद एक मिनिमा, फिर एक दूसरा मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, इस तरीके से मिलेगा। तो मिनिमा की कंडीशन क्या है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में? E sin theta equals to m lambda। ठीक है, E sin theta is equals to m lambda। कुछ कुछ मिल रहा है 2 mu t cos theta equals to n lambda। कहां पढ़ा था? थिन फिल्म इंटरफेरेंस में। खैर, वो अलग है ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्मूला मिक्स मत कीजिएगा। आप एक मार्जिन में एक अच्छा सा कार्ड बना लीजिएगा कि ये पूरी सेकंड यूनिट विच इज ऑन डिफरेक्शन एंड इंटरफेरेंस की फॉर्मूला याद रहे आपको। अब आती है थोड़ी सी और मैथमेटिकली इंटेंस चीज। हमें करना है सेकेंडरी मैक्सिमास निकालना है। यानी एक तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया थीटा इक्वल्स टू जीरो के लिए। अब थीटा जीरो नहीं है लेकिन फिर भी हमें मैक्सिमा मिल रहा है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं आप। उसकी कंडीशन निकालनी है। और उसके लिए आप क्या करें, बस मुझे फॉलो करें फिलहाल एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, आप हेडिंग डाल लीजिए इसी में। लिखते जा रहे हो ना साथ की साथ? Yes, sir. गुड देन। सेकेंडरी मैक्सिमा, एक्चुअली आप जानते हैं, आपने बताया कि जो इंटेंसिटी है बॉस विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर इंटेंसिटी। सेकेंडरी मैक्सिमा मैं बोल रहा हूं, सी माय अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। पहली चीज बोल दी मैंने दैट माय अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और मैं चाहता हूं कि डी आई बाई डी अल्फा जीरो हो फॉर मैक्सिमाइजिंग इट। ओके, डी आई बाई डी अल्फा को मैं जीरो करना चाहता हूं। इसका मतलब मैं डी बाई डी अल्फा ऑफ ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा के स्क्वायर को इक्वेट डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखना चाहता हूं। ठीक है, सो अब इसका डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल या कुछ करके निकालना है। आप चाहें तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, आप चाहें तो मैं आपको करके बता दूं। आप बताइए, यू विल हैव टू टेल मी, you want me to do it directly or you want me to do it in full? बताइए, जल्दी बताइए। डायरेक्ट। सर एग्जामिनेशंस में आएगा ये? अच्छा अच्छा अच्छा, सो आप बहुत कंडीशनली पूछेंगे मुझसे चलो कोई बात नहीं है, डन। देखो एक कंडीशन तो इसकी जीरो होने की क्या हो जाती है, गौर से देखिएगा। इसको जीरो करना है मुझे, है? तो एक कंडीशन तो जीरो करने की ये हो जाती है कि आप, क्योंकि ए स्क्वायर कांस्टेंट है ना, तो आप ऐसे लिख लें इसे ए स्क्वायर डी बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि ए को ही जीरो मान लो। तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, अंधेरे में क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा? ठीक है ना, सोर्स है और अंधेरा है तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ए जीरो नहीं है, यानी ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी अब हमारा जो डेरिवेटिव है वो किस पे रिड्यूस हो गया? ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये इतना भी टफ नहीं है, इसको इसका डेरिवेटिव लेना इतना भी टफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इट इज जस्ट दिस, इफ यू हैव टू टेक डी बाय डी अल्फा ऑफ
साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये। देखें, सबसे पहले आप इसे लेंगे 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, बिकॉज एन एक्स की पावर n माइनस वन, और फिर d बाय डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक, अब ये और पता करना है कि ये क्या होगा, तो ये हो गया आपका फाइनली 2 अपॉन साइन अल्फा अपॉन अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय इसका बताएं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos alpha कॉस अल्फा माइनस, cos alpha minus minus sin alpha. नहीं sin alpha Sin alpha. माइनस अल्फा का 1 हो गया और ये हो जाएगा केवल Sin alpha. sin alpha, and sin alpha. that's it, and that is what I am going to equate to 0. Fine, this is what I am going to equate to 0. अब दो चीजें आई हमारे पास, भाई ये टर्म तब 0 होगा या तो आप ये वाला 0 मान लो या फिर आप ये वाला 0 मान लो। तो दो दो अलग अलग कंडीशन है, एक साथ सेटिस्फाई करके देखेंगे क्या होगा। एक कंडीशन है मेरे पास, इफ साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0, ओके, साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0, या दूसरी कंडीशन है, यहां से इस वाली से लेंगे अगर, कि भाई अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, लेकिन ये थोड़ी सी और अच्छे से हम लिख सकते हैं, ये अल्फा स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो गया, बचा अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा। यहां से यहाँ आने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताएं अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा नहीं हो गया? डू यू एग्री टू दिस इक्वेशन, अल्फा इक्वल्स टू टेन Yes, sir. अल्फा? यस सर। अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा। अब देखें आप, अगर मैंने यहाँ साइन अल्फा अपॉन अल्फा को 0 मान लिया होता तो सेंट्रल मैक्सिमा वाली कंडीशन पे फिर से मैं चला गया होता, है ना, क्योंकि इट वुड हैव बिकम समथिंग लाइक दिस। अब जो दूसरी कंडीशन आई है मेरे पास, दैट इज समवॉट ट्रिकी, और ये हमें प्लॉट करके देखनी होगी। तो एग्जाम में बेहतर होगा कि आप ये जो है मुझे प्लॉट करके भी दिखा दें। तो आप में से कितने लोग tan अल्फा का प्लॉट करना जानते हैं? tan अल्फा प्लॉट करने को दिया जाए तो कर लेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू दैट? लेट मी जस्ट ग्रैब अ स्केल, एक ग्राफ बना के देखना है। मृदुल सिंघल ने कुछ कहा, कुछ कहना है, या आप कह रहे हो कि मैं 10 का ग्राफ बना लूंगा सर? सर बना ग्राफ की बोल रहा था। अच्छा ग्राफ की बोल रहे थे, अच्छा ठीक है। तो मैं भी एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, विच इज ऑफ tan अल्फा। ये वाला आपने नोट कर लिया है ना, ऑल यू हैव नोटेड, साथ के साथ लिखते जा रहे थे। तो ग्राफ भी मैं भी ग्राफ ही बना रहा हूँ। सो इट इज द ग्राफ विच इज लाइक दिस। सबसे पहले है हमारे पास जीरो वाली लाइन, फिर जीरो लाइन के बाद है हमारे पास पाई बाई टू वाली लाइन, फिर पाई बाई टू वाली लाइन के बाद है हमारे पास पाई की लाइन। तो मैं पाई की लाइन जो है डॉटेड बना रहा हूँ, ओके, आई एम मेकिंग दिस लाइन टू बी डॉटेड। फिर उसके बाद है हमारे पास थ्री पाई बाई टू की लाइन, फाइन। तो जो ऑड मल्टीपल्स की लाइन है, जैसे पाई की है, पाई बाई टू है, थ्री पाई बाई टू है, उसे मैं डार्क बना रहा हूँ, और जो इवन मल्टीपल्स है पाई के, उसको मैं पाई बाई टू के, उसको मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, फाइन। इस तरीके से एक हमारी और भी बन जाएंगी, वी कैन टेक अ फ्यू मोर। आप भी बना रहे हैं साथ में या केवल तमाशा देख रहे हैं? अगर स्केल है, अरे वाह, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। Okay, now you make a horizontal line which is, let's say, your x-axis. Okay, हो सकता है कैमरा के एंगल की वजह से आपको थोड़ी सी टेढ़ी लग रही हो, बट इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई हैव टू मेक समथिंग लाइक अल्फा लाइन। ओके, तो मान लो दिस इज माय y, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू y की एक लाइन बना दी। तो x इक्वल्स टू y की लाइन कितने पे इंक्लाइंड होती है? इसका थीटा क्या होगा? 45 45 डिग्री। तो ये मैंने एक लाइन बनाई है जिसको कि लिखा है मैंने y इक्वल्स टू अल्फा लाइन, या अगर ये अल्फा एक्सिस है तो y इक्वल्स टू अल्फा लाइन बनाई है मैंने, अगर x एक्सिस थी तो y इक्वल्स टू x लाइन बनाई थी, फाइन।
अब इसी पे आपको प्लॉट करना है y इक्वल्स टू tan अल्फा, आपको प्लॉट करना है y इक्वल्स टू tan अल्फा। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। आपने देखा होगा आर डी शर्मा में या और भी जो किताबें हैं उनमें, कि अगर ये 0 है और ये π/2 है तो 90 पे एक डिसकंटिन्यूटी आती है, ठीक है। किसके ग्राफ में? 10 के ग्राफ में। पाई पे ये 0 हो जाता है क्योंकि साइन 0 हो जाता है पाई पे, और फिर से एक डिसकंटिन्यूटी आई। ओके, और इसी तरीके से वी विल कंटिन्यूअसली बी हैविंग डिसकंटिन्यूटीज एट 2 पाई। और ये कितना हो गया आपका? 3π/2 ये पॉइंट, ये फिर 5π/2 हो गया, एंड दैट वे इट विल कंटिन्यू। एंड हमारे पास ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 3 पाई, ये हो गया आपका 7π/2। इट वुड कंटिन्यू लाइक दिस, फाइन। अब यहाँ पे जिस भी जगह पे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप देखें, आई कैन से कि जहां भी वी आर गेटिंग द कंडीशन लाइक alpha is equals to tan alpha, it would become a maxima. Alpha equals to tan alpha, it would become a maxima. और इसी से related the point of intersection of these curves which we say, okay. तो जैसे यहाँ मान लीजिए, या यहाँ मान लीजिए, या यहाँ मान लीजिए, या जहां भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको इन कर्व्स का, अ, वो वैल्यूज जो होंगी वो लगभग लगभग 0, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसी इसके बराबर होंगी, ओके। तो ये बहुत अच्छा सा कर्व नहीं बनाया है मैंने, बहुत अच्छा सा कर्व नहीं बन पाया, बट जब भी आप देखेंगे तो ये जो इंटरसेक्शन है वो वही होगा। तो इंटरसेक्शन वैल्यूज जो होंगी वो कहाँ कहाँ होंगी? आई कैन राइट दैट द इंटरसेक्शन विल बी एट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इक्वल्स टू 3π/2। अल्फा इक्वल्स टू 0 पे क्यों हुआ? बिकॉज आई वाज हैविंग tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। अब दोनों 0 पे तो ये 0 ही हो जाएंगे, एंड देन प्लस माइनस 5π/2, देन प्लस माइनस 7π/2। वो एसिम्प्टोटिकली जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स नेवर लाइक दैट। ये जो चीजें हैं वो एसिम्प्टोटिक है, मतलब ऐसा आभास होगा कि यहाँ जो है ये मिल रही हैं। अल्फा इक्वल्स टू 0 तो प्रिंसिपल मैक्सिमा देता है, ये आप जानते ही हैं। और इसके अलावा 3π/2, 5π/2, 7π/2 और आगे बढ़ेंगे तो वी विल बी गेटिंग आवर सेकेंडरी मैक्सिमास, ओके। 3π/2, 5π/2 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो वी विल बी गेटिंग अ सेकेंडरी मैक्सिमस। और एक चीज देखने वाली है, ये कहां से शुरू हो रहे हैं? π/2 से शुरू नहीं हुए हैं, कहां से शुरू हुए हैं? 3π/2 से 3π/2, 5π/2, 7π/2 इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। π/2 इज एक्सक्लूडेड। तो एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा कि आप इसे जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन एक्चुअली राइट इट इन अ जनरलाइज वे, और यू कैन generalize it in this form, and you can write that you will get a secondary maxima, if your alpha is equals to plus minus 2n plus 1 by 2 into pi, या 2n plus 1 pi/2, where now n starts from n One. and so on, because we just cannot bear it to be pi/2. We cannot have it as pi/2, we want to have it as 3π/2, 5π/2, 7π/2। फाइन। अब अल्फा की वैल्यू लिख दीजिए जरा। अल्फा इज पाई बाई लैम्डा e sin theta is equals to plus minus 2n plus 1 pi/2, pi से pi cancel, you got your e sin theta is equals to plus minus 2n plus 1 lambda by 2, okay, plus minus 2n plus 1 lambda by 2, and this is it। ये कंडीशन है किसकी? सेकेंडरी मैक्सिमा की। ये कंडीशन है आपकी सेकेंडरी मैक्सिमा की। अब एक चीज हम करके देखते हैं, व्हाट विल बी the intensity of the secondary maxima? What will be the intensity of the secondary maxima? Let us try and do that, okay। Intensity of secondary maxima with respect to the intensity of the primary maxima, तो आपने देखा intensity का फॉर्मूला हमने निकाला I which was equals to a square sin alpha upon alpha का स्क्वायर, अग्री। अगर प्रिंसिपल मैक्सिमा होता तो इंटेंसिटी कितनी थी? a square a square, okay। So a square is the intensity of principal maxima। अब क्या करता हूं मैं फर्स्ट प्राइमरी
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का निकालने की कोशिश करता हूँ इंटेंसिटी. द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा? फॉर दैट आई हैव टू पुट अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा की जगह कुछ रखना है, दैट्स इट. और कुछ नहीं सोचना ई साइन थीटा के टर्म्स में, अल्फा की जगह कुछ रखना है. अल्फा इक्वल्स टू फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा n इक्वल्स टू 1. pi बोलो बोलो बोलो. n इक्वल्स टू 1 रखा है इसमें सेकेंडरी 3 मैक्सिमा pi by 2. 3 पाई बाय 2. तो इट वुड बी सिंपली दैट i फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, तो मैं सेकेंडरी मैक्सिमा को i1 से डिनोट करूंगा, विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 अपॉन 3 पाई बाय 2 का स्क्वायर. ओके, 3 पाई बाय 2 अपॉन 3 पाई बाय 2 का स्क्वायर. तो अगर आप इसे मुझे सॉल्व करके बताएं कि क्या आएगा, तो इट वुड बी अ गुड हेल्प, अ बिग हेल्प. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, क्या बेटा? तो it would be 4 upon 9 pi square times a square, which would be something like a square upon nearly 22. a square क्या था? इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा. ये 22 टाइम्स कम हो गई. ये 4 बाई 9 पाई स्क्वायर बाई 22 is 2 of 20. तो ये नंबर आप प्लीज देख लीजिएगा, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं भी whether this number is correct or not. Let me just turn a few pages of the book. Let me just see. Yes. Yeah, 4 by 9 pi square a square. Yeah, this is fine. This is absolutely correct. There is no issue in it. तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है. साइन पाई बाई 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से दिख रहा है 4 और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू आप जानते ही हैं. साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है? वो माइनस, तो लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो गया, इसलिए आपने रख लिया. एंड दैट्स व्हाट यू विल बी गेटिंग. इसी तरीके से अगर I2 निकालें, यानी 5 पाई बाई 2 डाल दें, तो क्या होगा? तो इट वुड बी कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक 4 अपॉन 25 पाई पाई स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, है ना? इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा. और जो रेशियो होगा इंटेंसिटीज का, इट वुड कम समथिंग लाइक दिस. जैसे मान लो आपसे कहा गया कि नहीं, हमें ये बताइए कि I0 इज टू I1 इज टू I2, ऐसे रेशियोज बताइए. ठीक है, तो वो इस तरीके से आएंगे. रेशियोज कह लें या आप इंटेंसिटी कंपैरिजन बोलें, तो I0 अगर 1 है, तो उस 1 का 4 बाई 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा I1, और 4 बाई 25 पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? I2, और 4 बाई 7 7 या 49 पाई स्क्वायर हो जाएगा I3, और इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे. ठीक है, पहले 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर के बाद क्या आएगा? 9 स्क्वायर, 9 9 81, एंड इट वुड कंटिन्यू. तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं इंटेंसिटी प्लॉट करूं विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, तो एक तो मुझे मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा. ओके, आई विल बी गेटिंग अ सेकेंडरी मैक्सिमा. फिर उस सेकेंडरी मैक्सिमा के बाद जब पाई या माइनस पाई के बराबर हो जाएगी वैल्यू, आई विल बी गेटिंग अ मिनिमा, विच आई विल कॉल एज मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा. उसके बाद पाई और 2 पाई के बीच में आई विल बी गेटिंग अनदर मैक्सिमा, जिसका की एम्पलीट्यूड कम होगा. ऐसे ही माइनस पाई और माइनस 2 पाई के बीच में भी आई विल बी गेटिंग अ मैक्सिमा, जिसका की एम्पलीट्यूड कम होगा. फाइन. उसके बाद 2 पाई और 3 पाई के बीच में आई विल बी गेटिंग अनदर मैक्सिमा, जिसका की एम्पलीट्यूड और कम होगा. माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई के बीच में भी आई विल बी गेटिंग अ मैक्सिमा, जिसका की एम्पलीट्यूड और कम होगा, एंड ये और कम होता चला जाएगा. तो इंटरफेरेंस में हमने देखा था कि मैक्सिमा मिनिमा की इंटेंसिटी सेम रहती थी, डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा मिनिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं रहती है. फाइन. ये एक बड़ा पॉइंट है टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. तो आज जो पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. दैट्स गुड. Yes, sir. Yes, sir. That's really good. I just have to see whether I put that on recording or not. Yes, it was on recording anyways. So I would be taking another 5 minutes to just postulate and point down the differences between interference and diffraction. So you can also write down. I would be making small table, और मैं point wise बताऊंगा, आप please उसे लिखते जाइएगा. What is the difference between interference and diffraction?
एक है इंटरफेरेंस, दूसरा है डिफ्रैक्शन। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। सबसे पहला है सोर्स क्या है। सोर्स है जब इंटरफेरेंस तब होता है जब दो कोहेरेंट सोर्स हैं, जो कोहेरेंट सोर्स है उनके जो वेवफ्रंट्स हैं वो आपस में इंटरफियर करें। तो इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन टू सेपरेट वेवफ्रंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ कोहेरेंट सोर्स। तो अकर्स व्हेन टू डिफरेंट wavefronts, two different wavefronts, right? Two different wavefronts superpose या superimpose और ये जो wavefronts हैं उनमें क्या है, वो दो कोहेरेंट wavefront है, तब आपको इंटरफेरेंस मिलेगा। डिफ्रैक्शन कब मिलेगा? डिफ्रैक्शन मिलेगा जब खुद इंटरफेरेंस ही हो जाए, इंटरफेरेंस हो जाए बिटवीन, इंटरफेरेंस अकरिंग बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं? जो आपको बताया कि हाइगन्स थ्योरी की वजह से व्हेनेवर यू आर हैविंग एन अपर्चर और अ स्लिट और अ सोर्स, okay, so it would act as a secondary source and those secondary source will then be having some phase difference in between and these can also interfere and we have just seen it. ठीक है, तो ये तो सोर्स हो गई। तो डिफ्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस अकरिंग बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स। फाइन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। अभी आपको ये चीज भी पता चलेगी, जो फ्रिंज विड्थ है वो भी चेंज होती रहती है, ना केवल इंटेंसिटी बल्कि फ्रिंज विड्थ भी बदलती है। तो फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ये तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ओके, तीसरा पॉइंट है एक और, कुछ और ऑब्जर्व किया हो आपने? इंटेंसिटी सबकी कैसी रहती है भाई? जो मैक्सिमा है वो सब सेम इंटेंसिटी के होते हैं, मैक्सिमा आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। और यहाँ पे मैक्सिमा की इंटेंसिटी ऑर्डर के साथ कम होती जाती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं maximum intensity is for central maxima and after that intensity decreases with order, intensity decreases with order of maxima। फाइन। हाँ, अब एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आगे चल के कहीं प्रूफ करने को मिल सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंटरफेरेंस होता है उसका जो मिनिमा है वो परफेक्टली डार्क होता है और डिफ्रैक्शन में मिनिमा परफेक्टली डार्क नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अक्सर इंटरफेरेंस में जो कंट्रास्ट है वो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन डिफ्रैक्शन में वो कंट्रास्ट इतना बेहतर नहीं दिखता है। लिखने की बात नहीं है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिखने वाली हैं, जो ऑब्जर्वेबल है। वो तीसरी वाली चीज कम ऑब्जर्वेबल है इसलिए उसको लिखने की जरूरत है नहीं। आप लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कंपैरिजन आ जाए कि भाई मिनिमा जो है किसका ज्यादा डार्क होता है, तो इंटरफेरेंस का ज्यादा डार्क होता है। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। टुमारो आई विल बी टेकिंग ये इसी चीज पे ही ना, अब मतलब सेम चीज का यूज करके हमें टू स्लिट और एन स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं। नहीं सुना है तो वी विल बी स्टडिंग दैट, और उसको यूज करके कुछ थ्योरी हम डेवलप करेंगे एंड दैट्स इट। अगली बार वही करते हैं, कल की क्लास में या ऑन संडे वी विल बी हैविंग वन क्लास। ऑन संडे इवनिंग डेफिनेटली देयर विल बी अ टेस्ट, और उस टेस्ट से पहले आप लोग you will have to submit 3 DHAs which are the summary of polarization। तो पोलराइजेशन की पूरी यूनिट को 3 डिफरेंट DHAs में बांट के समराइज कर लीजिए, नॉट मोर देन 4 पेजेस। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल के लिए आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, हाइगन्स थ्योरी के लिए कर सकते हैं, बट बाकी सारी चीजें तो थियोरेटिकल ही हैं, मतलब वो कॉन्सेप्ट्स हैं, एज सच कोई न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स की इंटेंसिटी मैलस के लॉ से या क्या कैसे चेंज हो जाएगी, एंड दैट्स इट। ठीक है,
That's it for today's class. I'll be stopping the recording now.